Hello students, I am Monica from Abhimanyu Career Point. Today I am here with chapter number 9 of your class 12th, that is coordination compound. This is lecture 1 for this chapter. In this lecture, we'll discuss what are coordination compounds and why these are called as coordination compounds and some basic terms which will be used in this chapter. So firstly, let's start with the introduction. Coordination compounds are the compounds of transition metal atoms, the previous chapter D block elements. D block elements are called transition metal atoms, and the coordination compounds are compounds of transition metal atoms with other groups, and the other groups known as ligands or ligands. The other groups known as ligands or ligands. These are complex compounds, not simple compounds as we have been studying from earlier classes. These are complex compounds of metal atoms. Which metal? Transition metal atom. Surrounded by ligands. कैसे हो सकते हैं ligands? Ligands can be anionic and ligands can be neutral by forming coordinate bond. This is very important. That is why they are called as coordination compounds, because they are formed by coordinate bonds. Central metal atom present surrounded by ligands that can be anionic or that can be neutral by forming coordinate bonds. Next is transition metal can form these compounds due to availability of d orbitals. As I said, these are of d block elements. So I'll discuss this point shortly after some time. I'll again discuss this point. Coordinate bond. Firstly, let's understand what is coordinate bond. Coordinate bond, also called as dative covalent bond और simply coordinate covalent bond, ये एक ऐसी बॉन्ड है जिसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है. जैसे कोवेलेंट में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती थी, इसमें भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, लेकिन वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम देता है. लेट लाइगेंड, लाइगेंड के पास कोई लोन पेयर है. लाइगेंड इज ए ग्रुप और एन एटम which have lone pair, so it will donate its lone pair to metal. It is the only one, आपने कभी नहीं सुना होगा कि मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं. यहाँ पर मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. दैट इज दीज आर समथिंग डिफरेंट. दिस कम्स अंडर अ डिफरेंट कैटेगरी. So in coordinate bond, a bond which is formed by two atoms sharing a pair of electrons. एक इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करते हैं, लेकिन वो पूरा का पूरा पेयर एक ही एटम देता है. And these electrons are held together by ligand as well as metal attracted by both the nuclei. दोनों के दोनों इसको ligand metal दोनों इसको क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. लेकिन जैसा कि हम सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड में पढ़ते थे, उसमें क्या होता था, लाइगेंड एक इलेक्ट्रॉन या फिर जो भी दो मेटल है, मान लो एक्स और वाई कोई एलिमेंट्स हैं जो क्या कर रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, तो एक्स भी एक इलेक्ट्रॉन देगा और वाई भी एक इलेक्ट्रॉन देगा और कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे. लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता. इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम जो है डोनेट करेगा और उसको दोनों शेयर करेंगे. क्लियर? दिस इज अबाउट कोऑर्डिनेट बॉन्ड. फर्दर, सो द एलिमेंट ligand, a group ligand L having lone pair or negative charge give its electron. ये क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है. एंड इलेक्ट्रॉन डोनर आर व्हाट, लुईस बेस. मोस्ट ऑफ द लाइगेंड्स आर लुईस बेस, और जो लुईस बेस नहीं होते वो हमारे सिलेबस में नहीं है. अभी हमें 12th में उसके बारे में नहीं पढ़ना है. हमें 12th में सिर्फ वही लाइगेंड्स के बारे में पढ़ना है जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं. एंड आफ्टर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स दे फॉर्म
कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं और इनको लाइगेंड्स कहते हैं, ठीक है। किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं? ये मेटल्स को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। एंड मेटल्स क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं। मेटल्स क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को क्या कहते हैं? लुईस एसिड कहते हैं। Ligands are giving electrons to metal. You can see the direction of electron also. Ligands are giving electron to metals. Now, why only transition metal atoms are forming these type of compounds? Because transition metal atom have d orbital. Transition metal have d orbitals like this. इनमें से कुछ d orbital क्या होगा? वैकेंट होंगे। वहीं पे अपने लिगेंड क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन्स को इसमें डाल देगा और एडजस्ट कर देगा। ट्रांजिशन मेटल एटम्स क्या करते हैं? उसके पास इतनी जगह है, इट हैव द ऑर्बिटल्स, ताकि वहाँ पर आके इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो जाए। इसीलिए सिर्फ ये ट्रांजिशन मेटल एटम्स ही क्या कर सकते हैं? कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स बना सकते हैं। एज आई हैव डिस्कस इन प्रीवियस स्लाइड, आई सेड आई विल डिस्कस दिस पॉइंट a bit later. Transition metal can form this compound due to availability of d orbitals. क्योंकि d orbital होता है, वहीं पे ligand के इलेक्ट्रॉन्स क्या है? सेटल होते हैं। क्लियर? Now let's discuss further. Another term, double salt. Double salt is nothing but just mixture of two simple salts. It is just mixture of two simple salts. Clear? For example, I'm taking two salts. One is ferrous sulfate and other is ammonium sulfate. One is ferrous sulfate and other is ammonium sulfate. Ferrous sulfate is of dark green color and ammonium sulfate is of white color. मैं क्या करूँगी? इन दोनों को जस्ट मैंने क्या कर दिया है? मिक्स कर दिया। मिक्सचर ऑफ टू सिंपल सॉल्ट्स, और उससे मुझे क्या मिलेगा? एक डबल सॉल्ट मिल जाएगा। एंड जो डबल सॉल्ट मिलेगा दैट विल बी नोन एज मोहर सॉल्ट। कोई इनमें कोई रिएक्शन नहीं है, सिंपली जस्ट जो है मिक्सिंग हुई है। एंड दिस इज़ ऑफ लाइट ग्रीन कलर। मोहर सॉल्ट इज़ ऑफ लाइट ग्रीन कलर। फेरस सल्फेट डार्क ग्रीन, अमोनियम सल्फेट वाइट, दोनों को मिक्स किया, लाइट ग्रीन कलर का जो हमारे पास डबल सॉल्ट बनता है। क्लियर? नाउ जब डबल सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, व्हेन दीज double salts are mixed in water we get all the cations and anion. For example, मैंने ये फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट या फिर आई वुड सिंपली से मोहर सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व कर दिया। मुझे क्या क्या आयन्स मिलेंगे? फेरस आयन भी मिलेगा, अमोनियम आयन भी मिलेगा एंड सल्फेट आयन भी मिलेगा। जैसे NaCl को जब डिज़ोल्व करते थे सिंपल सॉल्ट को, व्हाट वी विल गेट? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। सिमिलर इसमें भी यही होगा, सारे के सारे आयन्स मिलेंगे। अनदर एग्जांपल ऑफ डबल सॉल्ट इज़ पोटाश एलम, फिटकरी। पोटाशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, दोनों का मिक्सचर क्या है? ये पोटाश एलम है। और जब इसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे हमें पोटाशियम का आयन भी मिलेगा, हमें एल्यूमिनियम के आयन्स भी मिलेंगे और सल्फेट के आयन्स भी मिलेंगे। हमें सारे आयन्स मिल रहे हैं जब हम इसे वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हैं। ठीक है? नाउ लेट्स अगेन मूव ऑन टू कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेट कंपाउंड का एक एग्जांपल लेते हैं, पोटाशियम हेक्साफेरेट, हेक्सासाइनोफेरेट, लाइक दिस K4FeCN6। ठीक है? इसमें क्या है? सेंट्रल मेटल एटम है आयरन, इसको 6Cn ने ऐसे सराउंड कर रखा है। 6Cn ने क्या कर रखा है? इसे सराउंड कर रखा है। ठीक है? आई एम शोइंग 3 बट देयर आर 6Cn. So if I dissolve this compound in water, K4FeCN6 in water, what I will get? Only 4 potassium ions and 1 FeCN6, 4 negative ion. I'm not getting all the ions. If I get all the ions, I should get Fe2 positive and Cn negative too.
but I'm not getting these such ions, I'm only able to get these two ions. मतलब ये सिर्फ इन दो आइडेंटिटीज़ में टूट रहा है, लेकिन डबल सॉल्ट हमने पढ़ा था कि वो तो सारे के सारे जितने भी उसके अंदर आयंस हैं, जितने भी उसके अंदर बन सकते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल है वो सारे के सारे आयंस बन जाते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, यू कैन सी द फॉर्मूला, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है वो स्टेबल रहता है, वो रिटेन रहता है, और बाहर वाले अलग हो जाते हैं, अंदर वाला अलग हो जाता है, लेकिन अंदर वाले ब्रेक नहीं करते हैं, दे रिमेन स्टेबल इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड। लेकिन डबल सॉल्ट में ऐसा नहीं होता था। डबल सॉल्ट में वो सारे के सारे आयनाइज हो रहे थे। क्लियर? सो डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेट कंपाउंड को अगर हम कंपेयर करें, डबल सॉल्ट कंटेन टू टाइप ऑफ सॉल्ट just mixed together, and we will say a double salt contain two type of salt compounds crystallized in same ionic lattice। एक ionic lattice में दोनों को क्या कर दिया, साथ में क्रिस्टलाइज कर दिया है। और बॉन्ड्स कैसी हैं, कैटायन और एनायन के बीच में कैसी बॉन्ड्स होती हैं, आयनिक बॉन्ड्स होती हैं, सिंपल बॉन्ड्स हैं। लेकिन कोऑर्डिनेट कंपाउंड में क्या है, मेटल एटम को लाइगेंड्स ने सराउंड किया हुआ है, और कैसे, बाय मेकिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। क्लियर? एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हेन डबल सॉल्ट्स आर डिजॉल्व्ड इन वाटर, दे dissociate into ionic species, cations, anions, but in coordinate compounds are soluble compounds and are not separated into ionic species। they were, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है वो आयनाइज नहीं हो रहा था, दैट इज़ द मेन कोऑर्डिनेट कंपाउंड। जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है दैट इज़ मेन कोऑर्डिनेट कंपाउंड, और वो आयनाइज नहीं हो रहा था। क्लियर? सो आयनाइज नहीं हो रहा था तो हम उसमें क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स आयनाइज नहीं हो रहे थे, तो दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इन डिजॉल्व्ड स्टेट, बट एज double salts get dissociate, so they lose their identity in dissolved state। Clear? So this is about double salts and coordinate compounds। Clear? Now let's discuss some important terms which we will be discussing in the whole chapter। So first of all, coordination entity। What is coordination entity? लाइक मैं कब से कह रही हूँ, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, तो जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पड़ा था, अभी हमने क्या बोला था, FeCN6 4 नेगेटिव, ये क्या था, स्क्वायर ब्रैकेट थी। तो जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला होता है वो डिसोसिएट नहीं होता, और उसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी कंस्टिट्यूट्स अ सेंट्रल मेटल एटम like iron bonded to a fixed number of ions or molecules that is known as ligands, CN। सिर्फ यही दो चीज़ें हैं इसके अंदर, एक तो मेटल एटम है एंड द अदर वन इज ligands। ठीक है? कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज अ पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड, द मेन पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड इंक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट। क्लियर? कोऑर्डिनेशन एंटिटी फॉर एग्जांपल एज FeCN6 4 नेगेटिव, और भी है, जैसे कि ये एक हो गई COCl3 NH3 थ्राइस। इसमें एक ये सेंट्रल मेटल एटम है कोबाल्ट, और लाइगेंड्स कौन कौन से हैं, क्लोरीन के 3 लाइगेंड्स हैं और अमोनिया के भी 3 लाइगेंड्स हैं। 2 तरह के लाइगेंड्स हैं, 3R ऑफ क्लोरीन एंड 3R ऑफ अमोनिया। क्लियर? नेक्स्ट NiCO4, Ni is central metal atom and CO carbonyl के 4 ligands हैं। Clear? Third example, I've discussed it earlier also, iron is the central metal atom and CN is what, ligands। मतलब iron is surrounded by 6 cyanide ligands। Clear? Next, central metal atom. I was saying central metal atom, central metal atom. What is this? Central metal atom to which ligands are attached? Metal to which ligands are attached through coordinate bond and forming a coordination complex.
फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने पीछे भी स्लाइड में आपको बताया कि इनमें क्या है, कौन कौन से, ये लाइक दिस निकल इज सेंट्रल, जो भी डी ब्लॉक एलिमेंट आएगा इसमें, ट्रांजिशन एलिमेंट आएगा, बट वो क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है. क्लियर? लाइक इन दीज, यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें कौन कौन से सेंट्रल मेटल एटम है, इन दिस केस NiCl2 H2O4, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे. अभी हमें इतना पता होना चाहिए दैट निकल इज़ द सेंट्रल मेटल एटम. विल लर्न टू इट कि कैसे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है. बट राइट नाउ वी नो निकल इज़ द सेंट्रल मेटल एटम, एंड हेयर इन द सेकेंड एग्जाम्पल कोबाल्ट इज़ द सेंट्रल मेटल एटम. क्लियर? Now let's discuss about ligands. I'm saying कि ligands इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे. ligands can be neutral. न्यूट्रल कब होंगे, जैसे कि NH3 होता है ना, कि उसके पास क्या है, लोन पेयर है, इट कैन बी डोनेटेड, इट्स अ न्यूट्रल लाइगेंड. अदर इज अनायन, जैसे कि क्लोरीन Cl नेगेटिव, इट कैन डोनेट इट्स नेगेटिव चार्ज. मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ही तो है ना, नेगेटिव चार्ज का मतलब ये है 2 इलेक्ट्रॉन. सो दीज 2 इलेक्ट्रॉन कैन बी डोनेटेड. बट क्लोरीन नेगेटिव क्या है, एक अनायन है, बट अमोनिया इज़ अ न्यूट्रल लाइगेंड. क्लियर? सो लेट्स डिस्कस अबाउट दीज काइंड ऑफ ligands now. Clear? The ions or molecules which donate electrons to metal are called ligands. जो अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर देते हैं, मेटल को डोनेट करते हैं. These ions are bound to central metal atom by कोऑर्डिनेशन बॉन्ड. और ये कहाँ पे होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही होते हैं, यानी कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर ही होते हैं. क्लियर? नाउ लेट्स डिस्कस द टाइप्स ऑफ लाइगेंड्स. एक तो हमने पढ़ा अभी, जैसे मैंने बोला न्यूट्रल लाइगेंड जैसे कि अमोनिया, एंड एनाइनिक लाइगेंड जैसे कि Cl नेगेटिव. करेक्ट? उसके बाद हम आगे थोड़ा और टाइप्स पे डिस्कस करते हैं. क्लियर? लिगेंड्स में बी सिंपल एक मोनो एटोमिक टाइप भी हो सकते हैं, लाइक Cl नेगेटिव एक सिंपल एक एटम है, एक सिंपल आयन है. क्लियर? या फिर लिगेंड एक छोटा मॉलिक्यूल भी हो सकता है, जैसे कि NH3 छोटा सा मॉलिक्यूल है, या फिर वाटर H2O, O के ऊपर क्या है, लोन पेयर है, इट कैन बी डोनेटेड. तो H2O का एक छोटा सा मॉलिक्यूल है, तो इट कैन बी अ लाइगेंड. या फिर अब साइज़ थोड़ा और बढ़ाते हैं लाइगेंड का. लाइगेंड का साइज़ क्या हो जाए, लार्जर मॉलिक्यूल हो जाए. लाइगेंड क्या हो जाए, थोड़ा लार्जर मॉलिक्यूल हो जाए, जैसे कि ऑक्सलेट. व्हाट इज़ ऑक्सलेट? COO नेगेटिव, COO नेगेटिव. ये क्या इधर से भी लाइगेंड डोनेट कर सकता है, इधर से भी डोनेट कर सकता है. क्लियर? दिस इज ऑक्सलेट, उससे थोड़ा बड़ा आ गया NH3 से. एंड द नेक्स्ट इज मैक्रोमोलिक्यूल, इससे भी बड़ा और ज़्यादा बड़ा आ गया मैक्रोमोलिक्यूल, जैसे कि हीमोग्लोबिन. हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स है, हमें पता है उसमें क्या होता है, HB. दिस इज़ व्हाट, HB. हमारे हीमोग्लोबिन में क्या है, आयरन, सेंट्रल मेटल एटम आयरन. और इतना बड़ा सा एक मैक्रोमोलिक्यूल होता है विच इज़ डोनेटिंग इट्स इलेक्ट्रॉन टू आयरन. क्लियर? सिमिलरली क्लोरोफिल जो प्लांट्स में होता है, उसमें सेंट्रल मेटल एटम कौन होता है, मैग्नीशियम होता है. एंड द लाइगेंड अराउंड इट लाइक दिस डोनेट द इलेक्ट्रॉन. ठीक है? तो यहाँ पर जो लाइगेंड का साइज़ आप देख सकते हो बहुत बड़ा है. तो दिस वाज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज. ठीक है? नाउ लेट्स डिस्कस वन मोर क्लासिफिकेशन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन. मतलब इस क्लासिफिकेशन में हम पढ़ेंगे कि वो डोनेट कैसे कर रहा है इलेक्ट्रॉन. अभी तक हमने साइज़ की बात की या उसकी नेचर कही लाइगेंड की, वो न्यूट्रल है या अनायनिक है. यहाँ पर हम बात करेंगे कि वो डोनेट कैसे कर रहा है. ठीक है? सो फर्स्टली वी विल स्टडी इन दिस यूनिडेंटेट. यूनी मतलब क्या है, वन, डेंटेट मतलब
बॉन्ड बनाएगा या इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब ये सिर्फ वन तरीके से ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है. फॉर एग्जाम्पल, द लाइगेंड्स विच डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू अ सिंगल, एज आई सेड वन मतलब क्या है, सिंगल, मतलब ये ऐसे लाइगेंड्स हैं जिनमें सिर्फ एक ही डोनर एटम है. जैसे कि क्लोरीन नेगेटिव, ये क्या करता है, अपना नेगेटिव चार्ज डोनेट कर सकता है, बट इट्स हैविंग वन, ओनली वन. NH3, ओनली नाइट्रोजन हैव वन लोन पेयर, तो इट विल डोनेट. H2O, इट हैव टू लोन पेयर, इसके पास दो लोन पेयर होते हैं H2O के पास, पर ये सिर्फ एक ही डोनेट कर सकता है. और वैसे भी डोनर एटम तो एक ही है ना, चाहे दो लोन पेयर भी डोनेट करे, लेकिन डोनर एटम तो एक ही है. सो इट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ यूनिडेंटेट. क्लियर. नेक्स्ट इज बाइडेंटेट. वी नो बाइडेंटेट, बाइनरी. बाई का मतलब क्या है, टू. बाई मीन्स टू. Bidentate, the compounds, the ligands which can donate two lone pair through two donor atoms. बेसिकली सिंपल बात इसमें यही है, इसमें कितने डोनर एटम्स हैं, दो डोनर एटम्स हैं. क्लियर. फॉर एग्जाम्पल, इथाइलिन डाईअमीन मतलब दो अमीन ग्रुप हैं, NH2 एंड सेंटर में क्या, इथाइलिन. CH2 सेंटर में, और आसपास दोनों क्या है, अमीन ग्रुप्स हैं, NH2 हैं. ठीक है. तो एक ये वाला नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, एक ये वाला नाइट्रोजन भी. जो मैंने ग्रीन क्यों है, दीज आर डोनर एटम्स. सो इसमें आपको पता चल रहा है यहाँ पे क्या है, दो डोनर एटम्स हैं. सो इट इज़ अ बाइडेंटेट लिगेंड. इट इज़ व्हाट, बाइडेंटेट लिगेंड. इसमें अगर एक और एग्जांपल है, अभी पीछे भी हमने पढ़ा था, ऑक्सलेट, COO नेगेटिव, COO नेगेटिव. क्लियर. सो यहाँ पर ये वाला ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है, दिस ऑक्सीजन एंड दिस ऑक्सीजन, बोथ कैन donate, both can make the bond, so it is a bidentate ligand. It is what, bidentate ligand. Clear. Next, polydentate ligand. इसके बाद के जितने भी आते हैं, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट, सबको हम एक ही कैटेगरी में डाल देते हैं, दैट इज पोलीडेंटेट लिगेंड्स. सो इसके हम कैसे स्टडी करेंगे, अ लिगेंड in which several donor atoms, or I would say more than two donor atoms are present. Clear. For example, ethylene diamine tetraacetate ion, that is EDTA4 negative. Ethylene means eth means दो कार्बन, CH2 डाईअमीन मतलब दोनों साइड क्या लगा है, नाइट्रोजन है, अमीन ग्रुप है, लेकिन अमीन में हाइड्रोजन को किसने रिप्लेस किया है, टेट्रा एसीटेट, CH2CO, 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 CH2CO. You can see in the diagram. This is ethylene diamine tetraacetate. क्लियर. टेट्राएसिटेट आयन है. सो ये देखो, ये कहाँ कहाँ से डोनेट कर सकता है. यू कैन सी दिस O नेगेटिव कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन, दिस कैन डोनेट दिस एंड नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है. दीज ऑल्सो कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, दीज ऑल्सो कैन डोनेट इट्स लोन पेयर. तो यहाँ पे सिक्स डोनर एटम्स है. यहाँ पे कितने डोनर एटम्स है, 6 डोनर एटम है. सो इट इज़ व्हाट, hexadentate ligand, comes under the category of polydentate ligand. Clear. It have 6 donor atoms. Clear. Now let's discuss further on the ligands. Ambidentate ligands. ambi का मतलब है, बाय का मतलब तो वही हो गया दो, इसमें है तो दो, पर या ये ऐसा नहीं है कि दोनों से साइमल्टेनियसली ज्वाइन नहीं कर सकता, दोनों से साइमल्टेनियसली बॉन्ड नहीं बना सकता. चाहे कुछ हो जाए, ये दोनों से साइमल्टेनियसली बॉन्ड नहीं बना सकता. फॉर एग्जाम्पल, चलो पहले इसके डिफाइन देखते हैं. हैज़ 2 और मोर डोनर एटम्स, हैं तो हैं, 2 से ज़्यादा एटम भी हो सकते हैं, डोनर एटम, बट व्हेन अ कॉम्प्लेक्स इज़ फॉर्म्ड ओनली वन डोनर एटम विल अटैच, ओनली वन डोनर एटम विल डोनेट इट्स लोन पेयर, ओनली वन डोनर एटम विल फॉर्म
coordinate bond. For example, NO2 negative. Clear? Like this, NO2 negative. यहाँ पर या तो ये जाएगा आइदर दिस वन और थ्रू नाइट्रोजन. ये नहीं है कि दोनों एक साथ बना देंगे, नहीं. यू कैन सी, या तो नाइट्रोजन बनाएगा या फिर ऑक्सीजन बनाएगा. नाइट्रोजन बनाएगा तो लाइगेंड का नाम क्या हो जाएगा? नाइट्राइटो एन. ऑक्सीजन बनाएगा तो लाइगेंड का नाम क्या हो जाएगा? नाइट्राइटो ओ. दोनों एक साथ नहीं बना सकते एम्बीडेंटेट में. बाइडेंटेट में नॉर्मली दोनों भी बना सकते हैं, जैसी ज़रूरत है उस हिसाब से होगा, लेकिन एम्बीडेंटेट में दोनों बना सकते ही नहीं है. एक और एग्जांपल है अगर एम्बीडेंटेट का, दिस इज़ थायोसाइनेट, SCN नेगेटिव. इसमें या तो सल्फ़र बनाएगा या फिर नाइट्रोजन बनाएगा, दोनों एक साथ नहीं बना सकते. अगर सल्फ़र बनाएगा, सल्फ़र इलेक्ट्रॉन देगा तो इट विल बी थायोसाइनेटो S, और अगर नाइट्रोजन बनाएगा इट विल बी थायोसाइनेटो N. बोथ साइमल्टेनियसली कैन नॉट मेक द बॉन्ड. क्लियर? नाउ लेट्स मूव फर्दर विद चिलेट. अभी हम चिलेट या किलेट भी कहते हैं इसको. सो अभी हमने बाइडेंटेट लिगेंड्स पढ़े, राइट? बाइडेंटेट लिगेंड्स में अगर उनकी मर्ज़ी है वो एक बार लाइक एग्ज़ाम्पल लेके स्टार्ट करते हैं इसको. फॉर एग्ज़ाम्पल COO नेगेटिव, COO नेगेटिव. ये एक भी डोनेट कर सकते हैं, ये दो भी डोनेट कर सकते हैं. क्लियर? अगर ये कुछ ऐसे डोनेट करें लाइक दिस, समवट लाइक कि इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया, एक इसको डोनेट किया, दिस इज़ द मेटल एटम. सो कैन यू सी एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर बन गया लाइक दिस. एक ऐसी रिंग सी बन गई है. सो दिस इज कॉल्ड किलेट. दिस इज कॉल्ड किलेट व्हेन अ लाइगेंड यूजेस इट्स टू और मोर एटम्स साइमल्टेनियसली. जब साइमल्टेनियसली यूज़ करता है टू बाइंड अ सिंगल मेटल. एज आई हैव शोड यू, इट attaches to metal ion in a manner that it forms a ring. You can see here also ethylene diamine. See here, ethylene diamine. ये वाला नाइट्रोजन भी इस मेटल एटम के साथ है, ये वाला नाइट्रोजन भी इस मेटल एटम के साथ क्या बना रहा है? बॉन्ड बना रहा है. सो इट इज़ फॉर्मिंग अ रिंग. और जब ऐसा ये रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनता है तो इट is found that it was more stable, extraordinary stable होता है. नॉर्मल जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनती है उससे ज़्यादा स्टेबल कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पर बनती है. दिस इज़ कॉल्ड किलेट रिंग. दिस इज़ कॉल्ड चिलेट रिंग और किलेट रिंग. एंड दिस इज़ मोर स्टेबल एज आई सेड. ये क्या है? ज़्यादा स्टेबल है देन द ऑर्डिनरी वन. सो दिस effect, this extra stability effect is called as Chilate effect. Clear? So this was about ligands की. ligands में क्या क्या चीज़ें हैं I'll discuss again. Unidentate, bidentate, and then further tri-tetra will come under the category of polydentate. Next is ambidentate. Depend upon the position then which atom is going to donate its lone pair. And chelate when more than two or more than two atoms are simultaneously donating the electrons to make a chelate ring. Clear? So this was about ligands. Now let's discuss one more term, that is coordination number. What is coordination number? Coordination number of a metal ion in a complex or in a coordinate compound can be defined as the number of ligand donor atoms to which metal is directly bonded. Like this is metal, इसके साथ कितने ligands जुड़े हुए हैं, that is called as कोऑर्डिनेशन नंबर. मतलब एक मेटल है, मान लो एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी में एक मेटल है और उसके साथ 4 लाइगेंड्स जुड़े हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 4. लेट्स अंडरस्टैंड दीज विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. फर्स्ट एग्जांपल इज PtCl6 2 नेगेटिव. कोऑर्डिनेशन एंटिटी में आप देख सकते हो प्लैटिनम इज द सेंट्रल मेटल एटम एंड 6
क्लोरीन लाइगेंड्स हैं उसके साथ. तो कितने लाइगेंड्स हैं? 6. सो द कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6. क्लियर. नेक्स्ट एग्जाम्पल लेके चलते हैं. NiNH3 4, मतलब Ni इज द central metal atom bonded with 4 ammonia ligands, so the coordination number is 4. Clear. Next, FeC2O4 thrice, मतलब 3 C2O4 ligands लगे हैं. तो यहाँ हम सोचे कि coordination number is 3. No, wrong. Coordination number is not 3. Why so? Because we have studied coordination, oxalate. C2O4 is what? बाईडेंटेट. ये अपना ये वाला लोन पेयर भी डोनेट कर सकते हैं, ये अपना ये वाला लोन पेयर भी, ये अपना ये इलेक्ट्रॉन्स भी डोनेट कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स भी डोनेट कर सकते हैं. दिस इज़ अ बाईडेंटेट लिगेंड. तो बाईडेंटेट लिगेंड के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर, एज इट इज़ अ बाईडेंटेट के लिए 2. कितने लाइगेंड्स हैं? 3. तो टोटल विल बी 6. सो कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6. लेट अस एज्यूम कि यहाँ पर ट्राइडेंटेट लिगेंड लगे होते 3, तो द कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता? 9 आता. लेकिन अभी क्या हो रहा है? बाईडेंटेट लिगेंड्स लगे हुए हैं 3, सो द कोऑर्डिनेशन नंबर कम्स आउट टू बी 6. क्लियर. So that's how we calculate the coordination number. Clear? I hope this is clear to you. अगर आपको कोई भी डाउट्स होते हैं तो you can comment below. I'll get back to you. जो भी आपके डाउट्स होंगे उसके लिए मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगी. So I'll end this lecture with this. Thank you students.